रिसेंटली शेयर्ड एन नायका हॉल जिसके अंदर मैंने 2 नए फेस प्रोडक्ट्स मंगवाए थे. आई ऑर्डर्ड दिस न्यूली लॉन्च्ड मेबेलिन्स बीबी क्रीम एंड के ब्यूटी का भी जो न्यू लॉन्च है विच इज देयर हाइड्रा ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन. दैट इज व्हाट आई ऑर्डर्ड. सो आई डिड ऑर्डर 2 बेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका वेरी रिसेंटली ड्यूरिंग देयर 14th birthday sale. Right now it is time to go out and I am sitting completely barefaced. I just have 20 minutes to get ready. So I wanted to try this particular BB cream by Maybelline. Now I absolutely love Maybelline के products. बहुत affordable होते हैं and काफ़ी अच्छे से perform भी करते हैं. And I also do feel a little nostalgic about BB creams क्योंकि BB creams used to be in the makeup industry a while back and अब उसको different नामों से जाना जाता है and they are marketed in a different way. अगर हम इस particular product की भी बात करते हैं, इस particular product का नाम है Maybelline Fit Me Glow BB Skin Tint. So basically it is a skin tint and it does contain an SPF of 50. So basically it is sort of a tinted sunscreen क्योंकि SPF काफ़ी strong है इसका. But yes, Maybelline decided to give it a name of BB cream. ये particular जो product है ये 9 different shades में available है and it retails for 429 rupees. मैंने personally Nykaa से order किया है so I did not pay that much for the product. मैंने इसे discount पे order किया है and I have ordered this in the shade 40. I am not too sure कि ये मेरा shade है या नहीं. We will find out together because I would be trying this particular BB cream right now for the very first time. So this is a first impression video. If this particular shade matches me, I am just hoping कि ये product मुझे पसंद आएगा because I in general do like Maybelline products. Now if we'll talk about the packaging of the product, so it is a very simple looking tube sort of a packaging. बहुत ही average, बहुत ही like convenient type की packaging है. जैसे पहले के टाइम में बीबी क्रीम हुआ करती थी. थैंकफुली इट इज़ नॉट अ ग्लास बॉटल सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ स्क्विशी ट्यूब विच इज़ ईजी टू ट्रैवल विद. इट जस्ट हैव अ वेरी ईजी टू यूज स्क्रू ऑन लिड जिसमें से आसानी से आप प्रोडक्ट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड ले सकते हैं या अपने स्पंज पे ले सकते हैं एंड यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई इट ऑन योर फेस. नाउ अगर हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें सो इट इज़ अ बीबी क्रीम. सो ऑफकोर्स इसकी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं होगी. आई एम अज्यूमिंग कि ये शेयर कवरेज देगा बट आई डू फील कि इट वुड बी गुड फॉर समर्स व्हेन यू डू नॉट वांट टू अप्लाई अ वेरी हाई ड्यूटी फाउंडेशन. लेकिन आप बिल्कुल बेयर फेस भी बाहर नहीं जाना चाहते. यू वांट टू हैव समथिंग ऑन योर फेस एंड ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली अच्छा इसलिए है बिकॉज इट डज कंटेन एन SPF ऑफ 50. तो आपको सेपरेटली सनस्क्रीन एंड बेस अप्लाई करना नहीं पड़ेगा. यू कैन जस्ट गो विद दिस प्रोडक्ट एंड यू आर गुड टू गो. डिस्क्रिप्शन दिया गया बाय द ब्रांड अगर हम उसकी बात करें सो एज पर Maybelline दिस प्रोडक्ट वुड गिव 24 आवर्स हाइड्रेशन क्योंकि इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड है अलॉन्ग विद 2% नियासिनामाइड. सो इट डज कंटेन अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट. सो हाइड्रेशन देगा ये आपके स्किन को while giving you a natural dewy look. So now enough about the product. I just want to go in and try it on my face. I'll just zoom you guys a little bit in so that आप मेरी स्किन का क्लोज अप देख पाएं. Okay, so now since I'm zoomed in, आप मेरे फेस के जो फ्लॉज है वो देख पा रहे होंगे. I do have a big pimple right here and I do have a little bit of acne here and on my forehead as well. I am not expecting कि ये BB cream इस particular situation में help करेगी but it might make it look a little bit better. So let's give it a try. I will take out a little drop of the product on the back of my hand and this is how it looks like. To be honest, shade देखने में तो ऐसा लग रहा है that it would be a little light for me but I will just give it a try. I'll just use my fingers and oh yes, it is a lighter shade for me but I think it will blend nicely. So मैं छोटी छोटी ड्रॉप्स अपने पहले फेस पे बना लूँगी एंड ऑल्दो आप इसे फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं. आई पर्सनली डू नॉट यूजुअली डू दैट तो आई विल यूज़ मेकअप ब्रश टू ब्लेंड इट ऑल ओवर माई फेस फर्स्ट सो दैट ब्रश से ब्लेंड करना थोड़ा आसान हो जाए एंड आई जस्ट टेक अ ब्रश एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. Okay, so definitely it is very clear कि ये मेरा shade नहीं है and I am not too sure कि how will I make this shade work for me but I still hope कि ये product जो है ये shade जो है थोड़ा बहुत oxidize कर जाएगा and it will not look as like white on my face as it is looking right now. I think I'll just take another brush
एंड मे बी ये वाला ब्रश थोड़ा बेटर तरीके से इसको ब्लेंड कर पाएगा. सी दिस इज़ द प्रॉब्लम व्हेन यू ऑर्डर ऑनलाइन. मैं अपनी 90% ऑफ द मेकअप शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ एंड आई स्टिल हैव द रॉन्ग शेड, बट ओके, I will have to make it work since I already have the product. I will make it work. Just to match my neck with my face, I'll just apply a little bit on my neck as well. Although I don't think it is helping a lot. I'll take a little bit more product directly on the brush this time and मैं थोड़ा सा और apply करूँगी. Okay, so as expected, this product did not do much on my pimple situation, and of course the shade is off. तो बहुत ज़्यादा फेस पे भी मुझे पता नहीं लग रहा है. आई वुड ट्राई टू फिक्स दिस सिचुएशन, मे बी अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर एंड जस्ट होप कि वो काम कर जाएगा. ये पर्टिकुलर शेड मेरे लिए इतना लाइट है दैट इवन माई कंसीलर इज डार्कर दैन दिस शेड. सो आई डोंट नो हाउ विल आई मेक इट वर्क. डू यू थिंक कंसीलर लगाने के बाद सिचुएशन कुछ बेटर लग रही है? मे बी इन पर्सन थोड़ा बेहतर लग रहा है, बट डेफिनेटली नॉट इन द कैमरा. आई लुक लाइक वाइट घोस्ट राइट नाउ. आई विल जूम द कैमरा बैक आउट एंड आई विल कंप्लीट माई मेकअप एंड उसके बाद मैं बात करूंगी हाउ एग्जैक्टली एम आई फीलिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. ओके, आई डू थिंक कि जूम आउट करने के बाद मेरे फेस की सिचुएशन उतनी अजीब नहीं लग रही है, बट स्टिल आई हैव टू गो आउट एंड आई डू हैव टू फिक्स दिस सिचुएशन. सो आई जस्ट क्विकली टेक अ फेस पाउडर and just dab it all over my face. Blank face lag raha, so I'll apply a little bit of blush. Maybe it will help me to balance out everything. I am actually working in tapping motion ताकि जो मेरी BB क्रीम है वो मूव ना करे अपनी जगह से. I have applied the powder, but I still want to be a little cautious. So I have my blush on and same product ko I will apply on my lips as well. Okay, so this is the final makeup look. I do not think that the shade is very flattering for me since it is way too light for me, but I am hoping that in the next few minutes, maybe around half an hour, ये थोड़ा oxidize कर जाएगा, specifically when I will go out in the sun. अगर कुछ और नहीं भी होगा, so I am sure कि ये मेरी skin को at least protect तो करेगा ही, since it does have SPF 50. Blend करना काफ़ी आसान है product को. इसकी जो consistency है that is very liquidy, so you can blend it using your fingers, brush या sponge, जिससे भी आप चाहें आप आसानी से इसे blend कर सकते हैं, and it does blend effortlessly, smoothly into the skin. Price point wise it is very nice and बाकी सब इसके बारे में ठीक है. I will just have to check कि इसकी staying power कैसी है and how exactly does this looks in the sun. So I will try and do a few check-ins throughout the day and then we'll see that how exactly do I feel about this BB cream. So next I will see you in my car. So as I was expecting, ये particular जो formula है ये बिल्कुल भी oxidize नहीं हुआ है मेरी skin पे and it is still looking way lighter than my skin color. But apart from that, I have also noticed a couple of things. First of all, it is definitely making my skin look a little bit glowy. UV finish definitely दे रहा है ये BB cream. And apart from that, अगर हम ब्लश की बात करें, सो इट इज मेकिंग द ब्लश अ बिट मोर पिगमेंटेड देन इट एक्चुअली इज. मैंने ये ब्लश काफी बार यूज किया है बट टुडे इट लुक्स वे मोर पिगमेंटेड देन ये यूजुअली जैसा दिखता है. सो फॉर नाउ आई डू थिंक इट लुक्स ओके ऑन मी, बट आई विल चेक इन विद यू गाइज इन अनदर आवर एंड सी ये उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसा दिखता है. सो इट इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट डे. ऑल्दो मैंने सोचा था कि मैं हर एक घंटे में चेक इन करूँगी टू शो यू हाउ माई मेकअप इज़ लुकिंग, बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट एंड टुडे आई वांट टू गिव माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस Maybelline's BB क्रीम. नाउ ऑनेस्टली आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतना पसंद आएगा, इवन दो द शेड जो मेरे पास है इज़ नॉट अ मैच फॉर मी. नाउ इनिशियल कुछ आवर्स तक ऑफकोर्स मेरा फेस काफ़ी लाइट लग रहा था एज कम्पेयर टू माई neck, but as gradually जैसे जैसे 2 hours 3 hours हुए
my foundation kind of got a little bit settled into my skin and उसके बाद I didn't feel too awkward और बहुत ज़्यादा ऐसे white face नहीं लग रहा था मेरा. But the staying power of this product is amazing. I applied it around 12 in the afternoon and I removed it at 8 p.m. in the evening and पूरे 8 hours तक. I don't know how long is it supposed to stay on the skin, but for me पूरे 8 hours तक ये जो BB cream है, it looked beautiful on my skin. अगेन कीपिंग द शेड मैच साइड, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो टेक्सचर था, जो फिनिश थी, इट वॉज इंटैक्ट इवन आफ्टर 8 hours. जब मैंने कार में चेक इन किया था, सो आई टोल्ड यू गाइज कि जो ब्लश मैंने अप्लाई किया था वो यूजुअली उतना पिगमेंटेड नहीं लगता है, बट आफ्टर यूजिंग द ब्लश ओवर दिस फॉर्मूला समहाउ ब्लश की जो पिगमेंटेशन थी वो इंक्रीज हो गई थी. एंड अगेन जो स्टेइंग पावर है ब्लश का, दैट वॉज ऑल्सो अराउंड 2 to 3 hours, बट ओवर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो स्टेइंग पावर था ब्लश का वो भी इम्प्रूव हो गया था. 8 hours बाद भी मेरा जो मेकअप है, इट वॉज लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक 70% परफेक्ट, आई वुड से. आई डोंट नो वॉट इज अबाउट दिस प्रोडक्ट दैट मेक्स इट सो ब्यूटिफुल. नॉट जस्ट द बेस बट बाकी जो मेकअप प्रोडक्ट्स है वो भी बेहतर तरीके से काम करते हैं ऑन द स्किन. जो बाकी प्रोडक्ट्स है उनकी भी जो स्टेइंग पावर है वो बेटर हो जाती है इफ आई यूज देम विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो फॉर मी दिस इज अ कंप्लीट हिट. बहुत अफोर्डेबल है, ब्लेंड करना आसान है, टेक्सचर अच्छा है, स्टेइंग पावर अच्छी है इसकी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सटल सा ड्यूई ग्लो देता है ये फेस को. एंड इसके साथ जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं. सो फॉर मी दिस प्रोडक्ट इज अ एब्सोल्यूट हिट. आई वुड डेफिनेटली गो टू द स्टोर एंड बाय माई शेड मैच दिस पर्टिकुलर BB cream. So yes, if you want to try something light, something new for your skin, I would highly recommend trying this new BB cream by Maybelline. So yes, that's it for today's video. Thank you so much for watching my video. Namaste.